shrimp culture. Nowadays biofloc word is very common. मैं दोनों तीनों लैंग्वेज में कवर अप करने का everybody having mobile, that is Android mobile. Right. Nobody is now, you will not find a single person without Android mobile nowadays. And nowadays everybody is giving more attention to prepare YouTube and uploading some materials on that YouTube. This is new trend going on, right from small kid to old man also. Whatever knowledge they have, whatever about any subject, or whatever they have, they want to just show or they want to make some. हर एक जन ऐसा बना रहा है आजकल, और ये लॉकडाउन में तो ऐसा हो गया, घर में बैठ के क्या करे, जो बना रहा है, जिसको जो मालूम है वो डाल रहा है. We don't want to blame the YouTube, but nowadays everybody is having very easy access of YouTube about uploading the things as well as about the handling the things or operating that thing. So bioflocking, you will get many more YouTubes of biofloc. आपको YouTube का बहुत हमारे इसमें बायोफ्लॉक का ऐसा उत्पन्न होता है, ऐसा प्रोडक्शन होता है, इसका इतना प्रॉफिट हो जाएगा, ये वो दुनिया भर का सब डला हुआ है. Now you have to think in what way you want to go. Okay, because YouTube is also a small university which is not any, nobody is authenticated. Means whatever I feel on that day, I will make my YouTube and I will upload something. तो जो भी मटेरियल है अपने को यूज करना है प्रॉपरली. That is one thing I am very much clear. I want to say very clear. Because nowadays everybody is asking about the biofloc because some new entrepreneurs or businessmen who have not done anything, they don't know about the fish. What is fish? They also want to start the biofloc. Right from today only. Right from today only. So my first request is to that all man. Please try to learn something about the biology of that particular fish. Okay, fish biology is very different. Science is very different. Okay, that too biofloc is again different. Okay. First, you just try to learn how that fish or shrimp, their biology and their just how their physiology and all that. Okay. Then and then you have to talk about the फिश कल्चर, बायोफ्लॉक कल्चर, दिस दैट. तो आजकल कैसा होता है कि जो हर एक लड़का उड़ जाता है और मेरे को बायोफ्लॉक करना है, सिर्फ बायोफ्लॉक ही करना है. बट दे डोंट वांट टू गेट द नॉलेज और दे डोंट वांट टू लर्न द थिंग्स और टेकिंग सम स्मॉल ट्रेनिंग्स of paying near about 5,000, 10,000 rupees for 5 days and 10 days, and they just want to start the business of this biofloc. And initially they are getting some problems they are facing. They are not getting proper knowledge. तो उससे क्या होता है, आदमी इनिशियल लेवल में ही फ्लॉप जाने की वजह से फिर वो टेक्नोलॉजी को दोष देता है. What blaming दे, नहीं ये बायोफ्लॉक में कुछ ये नहीं है, बराबर नहीं है, वो सब ऐसे करता है वैसा करता है, ये दुनिया भर का. Do like this. First of all, try to understand that technology. Because biofloc is not a simple technology. Just आज जो कर रहे हैं हम लोग वो सब सेमी इंटेंसिव श्रिम्प फार्मिंग और सम इंटेंसिव फिश फार्मिंग और सेमी इंटेंसिव श्रिम्प फार्मिंग इज गोइंग ऑन. उसमें क्या कर रहे हैं हम, आज जो एक्वाकल्चर अथॉरिटी जो है
कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी का अपने को परमिशन चाहिए, कोई भी श्रिम्प कल्चर तुम्हारे को करना है। तो क्या बोल रहे हैं, स्टॉकिंग डेंसिटी कितना रखना है अपने को, 50 नंबर्स और 60 नंबर्स मैक्सिमम पर मीटर स्क्वायर। 50 to 60 नंबर तुम रख सकते हो। अब बायोफ्लॉक में क्या है, इससे डबल जा सकते हैं तुम। ओके, इसमें का कोई भी श्रिम्प कल्चर आपको करना है तो आपको परमिशन लेनी है, उसको परमिशन लेनी है। अब ये जो भी सेमी इंटेंसिव अपन और सुपर इंटेंसिव कल्चर जो एक्वाकल्चर अथॉरिटी ने परमिशन दिया हुआ है, वो हम लोग जो कर रहे हैं वो पुराने हिसाब से कर रहे हैं। ओके, द थिंग डिफरेंस इज दैट उसमें हम पुराने ढंग से कर रहे हैं, उसमें प्रोडक्शन मिलने वाला है लेकिन वो थोड़ा कम है, स्टॉकिंग डेंसिटी भी कम है। इसमें डबल करने के स्टॉक है, लेकिन जब डबल करने के चांसेस है, डबल अपन इसमें 150 नंबर पर मीटर स्क्वायर डाल सकते हैं। बड़ा प्रॉफिट, बड़ी इन्वेस्टमेंट जब होती है तब हाई रिस्क भी आता है। हाई रिस्क आता है, ऑफ कोर्स श्रिम्प फार्मिंग में ऑलरेडी रिस्क है, उससे ज्यादा रिस्क से बायोफ्लॉक में। तो हमारा कहना ये है कि जो भी करना चाहता है वो थोड़ा स्टडी करे और उस स्टडी करके खुद का डेवलप करे। ये बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी ऐसा नहीं कि मैंने ट्रेनिंग दे दिया या फिर एक लेक्चर ले लिया कि तुम एक्सपर्ट हो गए। तुम जब तक के खुद, क्योंकि हर एक दिन का बायोफ्लॉक में जो कंडीशन आता है दैट यू हैव टू फेस पर्सनली, और हर एक दिन का कंडीशन अलग होता है। ऐसा भी नहीं कि तुमने समझ लो एक कल्चर शुरू किया और वो 30 दिन अच्छे से हैंडल कर लिया, तो 31वें या 32वें दिन प्रॉब्लम नहीं आएगा, ऐसे नहीं, कभी भी प्रॉब्लम आ सकता है। okay? और सडनली यू विल फाइंड मॉर्टेलिटी इन योर टाइम। So that's why you have to be very careful while doing the bioflok culture. हम मोस्टली सजेस्ट करते हैं तुम थोड़ा कल्चर स्कूल से इंट्रोड्यूस हो, पहिले कल्चर काय केलं जातं, कसं केलं जातं हे बघा आधी। ओके, देन यू हैव टू स्लोली मूव टू द बायोफ्लॉक कल्चर। अब परसों के दिन ही कैसा होता है, हम कॉलेज की इसमें पैक रहते हैं, हमारे को इतना यहाँ वहाँ आने जाने का समय नहीं होता है, या कभी कभी बात भी नहीं कर पाते, कोई मैसेज आता है। परसों के दिन मेरे को एक फ़ोन आया, पनवेल से कोई थे, he has retired from some pharmaceutical company and just now he has started some bioflok culture of shrimp. तो उसने मेरे को सुबह सुबह फ़ोन किया और बोला सर ऐसे ऐसे है, तुम अगर आ सकते हो तो। मैंने बोला उसको कि अगर मेरे को पॉसिबल हुआ तो मैं आ जाऊँगा, लेकिन नहीं पॉसिबल हुआ मेरे को। मैं जॉब करता हूँ रत्नागिरी, फैमिली इधर है, कभी कभार आता है सैटरडे संडे, तो उस टाइम में अगर जमता है तो ये होता है, अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। फर्स्ट थिंग आई हैव आस्क्ड टू हिम whether you have taken any training program about the bioflok. He said no. He doesn't know anything about it. He is basically a man from pharmaceutical company. Okay. He doesn't know what is fish, what is shrimp, but he has started his bioflok culture by seeing or by observing only YouTube. Okay. Suddenly he has faced many problems, some shrimp mortality. पहला स्टॉक गया, फिर अभी सेकंड टाइम उसने कुछ स्टॉक मंगवाया। मैंने भी उसको यही क्वेश्चन किया, तुमने कहीं ट्रेनिंग लिया है क्या, कहीं इंट्रोडक्शन किया है क्या? नहीं सर कुछ नहीं लिया, मेरे को पता नहीं। तो आप बताओगे तो कैसा है, फोन पे इतना नहीं बता सकते कुछ, और इतना ये फोन पे बताने लायक टेक्नोलॉजी सिंपल भी नहीं है। आज तक के हमने किए सेमी इंटेंसिव फार्मिंग या इंटेंसिव फार्मिंग, एक बार श्रिम्प डाल दिए या फीड डाल दिए तो बढ़ जाता है, इतना अपने को कुछ एफर्ट्स लेने की जरूरत नहीं। लेकिन बायोफ्लॉक में तुम्हारे को हर दिन
अलर्ट रहना है। आई एम सेइंग वेरी वेरी क्लियरली, ओके, हर दिन अलर्ट रहना है। जैसा समझ लो, ये श्रिम्प तुम कर रहे हो, करीबन 120, 125, 150 दिन तक का क्रॉप चलेगा, वो पूरे दिन तुम्हारे को अलर्ट रहना है। आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग, पूरा दिन अलर्ट रहना है 120 डेज, ओके, राइट फ्रॉम फर्स्ट डे टू 120 डेज। वो तुम्हारा 118 डेज पे भी स्टॉक सडनली मर सकता है, सडनली। यू आर हैंडल्ड वेरी वेल फॉर नियर अबाउट 115 days or 180 days. Suddenly ammonia will get increased or TDS will get increased and suddenly you will find the mortality. परसों भी मेरे को एक मैसेज डाला, सब तिलापिया कल्चर अच्छा चल रहा था ये वो, बट आई डोंट नो, सडनली आफ्टर नियर अबाउट 2 months he has find some mortality. तो इसीलिए जो भी करना है वो धीरे धीरे तुम्हारा एक्सपीरियंस करके करो। ऑफ कोर्स इसमें अच्छा प्रॉफिट है, लेकिन कैसा वो तुम्हारा हिसाब से स्टडी करते करते आगे बढ़ो। सडनली यू विल फाइंड सम डिफरेंट थिंग्स इन योर कल्चर। फर्स्ट थिंग, सो डोंट गो विद द यूट्यूब यूनिवर्सिटी, ओके, try to learn from yourself, try to take proper technology, try to discuss with some scientists, and then slowly you have to do it. What are the research we have done up till now? Mostly it is on nursery rearing. This technology is more economical suitable for nursery rearing of shrimp, whether it may be marine shrimp or prawn, that is Rosenbergi, Macrovacuum Rosenbergi, freshwater prawn, or you can go and rear with the some freshwater fishes also, that is katla, rohum, regal, tilapia. Okay? So for any fish you can use this technology for nursery. What are the success? That is what we are saying, success on the basis of economical level. Means if you have invest 1 rupees, surely in nursery rearing I am saying you will get 2 rupees. Okay, I am again repeating the same thing. If you will invest 1 rupee, you will surely get 2 rupees in nursery rearing of any seed in biofloc system. Okay, this is one thing. Another thing I am saying about the culture. नर्सरी रियरिंग हो गया, तुम्हारे को फ्राई, फिंगरलिंग और पीएल मिलेगा, उसके ऊपर तुम्हारे को वो फिश को या वो श्रिम्प को ग्रो करना है इन ग्रो आउट कल्चर पॉन्ड और इन ग्रो आउट कल्चर टैंक। ओके, जब तुम ग्रो आउट के लिए जाते हो तो उसमें भी इकोनॉमिक्स बैठना चाहिए, दैट इज बीसी रेशियो, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो। तो तुम्हारा 1 रुपये डाला है तो 2 रुपये मिलना चाहिए, उस हिसाब से तुम्हारे को सब ये फिर स्टडी करना पड़ता है। ओके, और मोस्टली इसमें जो इन्वेस्टमेंट है मेजर, दैट इज ऑफ इसको बायोफ्लॉक को एरेशन कंटिन्यूस लगता है, बिकॉज आवर स्टॉकिंग डेंसिटी इज वेरी हाई, स्टॉकिंग डेंसिटी इज वेरी हाई, दैट्स व्हाई वी रिक्वायर कंटिन्यूस एरेशन, और उसको बैकअप भी चाहिए, फिर ब्लोअर चाहिए, तुम्हारा इन्वर्टर चाहिए, तुम्हारा नेक्स्ट सिस्टम चाहिए, या फिर इलेक्ट्रिकल और शटडाउन हुआ तो तुम्हारा सिस्टम चाहिए। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारे को क्या रेट से मिल रही है उसके हिसाब से तुम्हारा इकोनॉमिक्स बैठेगा। ओके, तीसरा इकोनॉमिक्स बैठेगा कि तुम कौन सा फिश कल्चर कर रहे हो, तुम्हारे कौन से साइट पे कर रहे हो, कौन सा साइट इन द सेंस, अब इन एन एवरेज जो भी हम लोग छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं उसमें ग्रो आउट के लिए तुम जब जाते हो तो उसका इकोनॉमिक्स अभी भी बैठ नहीं रहा है, किसी के इसमें बैठ रहा है, किसी के इसमें नहीं बैठ रहा है, दैट टू साइट स्पेसिफिक इन एंड अराउंड। जो ग्रो आउट पे इकोनॉमिक्स जाता है बायोफ्लॉक कल्चर में, वंस यू हैव
stocking the size of near about finger length size if you will stock, and you will go for ground culture. तो उसमें इकोनॉमिक्स समझ लो 1 kg फिश प्रोडक्शन को तुम्हारे को 200 रुपीज खर्चा आएगा. आई एम सेइंग अगेन 1 kg फिश प्रोडक्शन को या श्रिम्प प्रोडक्शन को तुम्हारे को 200 रुपीज खर्चा आता है. तो तुम्हारा सेल आउट होना चाहिए एटलीस्ट 250 रुपीज को. करेक्ट. तो ही तुम्हारा इकोनॉमिक्स बैठेगा, तुम्हारा कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बैठेगा. वो करने की तुम्हारी कैपेसिटी है तो तुम्हारा वो बायोफ्लॉक का प्रोजेक्ट प्रॉफिट में चलेगा, अदरवाइज नॉट. ओके, आई एम वेरी क्लियर. ओके, वॉट एवर आई एम सेइंग इट इज वेरी क्लियर ना. नहीं तो क्या होता है, कोई लोग करते हैं वो तिलापिया ग्रो भी कर लेते हैं या श्रिम्प ग्रो भी कर लेते हैं, और जब फिर तैयार हो जाता है माल उनका, उस टाइम में उनको सेल का प्रॉब्लम आता है या फिर उनको वो रेट नहीं मिलता. ओके, अब तुम्हारे को 200 रुपए प्रोडक्शन कॉस्ट ही आ गया. हाउ यू विल सेल दैट पर्टिकुलर फिश या पर्टिकुलर श्रिम्प इन 150 रुपीज. सो इट इज वेरी क्लियर. वो अगर तुम 150 रुपीज में बेचोगे तो तुम्हारा लॉस ही होना है. करेक्ट. इट इज वेरी क्लियर. सो हाउ यू विल गो फॉर दैट. इसीलिए अपना खुद का तुमने रिसर्च करना है. कोई भी शुरू करने से पहले तुम्हारा साइट कहाँ पे होना चाहिए. तो ये कहाँ पे अच्छा चलेगा ग्रोआउट सिस्टम, जहाँ पे पानी कम है, जहाँ पे फिश का कोई वेराइटी नहीं है, वैसे जगह पे बायोफ्लॉक का सिस्टम अच्छा काम करेगा, तुम्हारे को रेट अच्छा मिलेगा. ओके. अब हमारा एक ट्रेनिंग से कंप्लीट किया हुआ आदमी सातारा में बायोफ्लॉक का कल्चर उसने यूनिट शुरू किया है. तिलापिया कल्चर वो कर रहा है. तिलापिया कल्चर में उसको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है. वाई? तो सातारा जैसा ऐसा इंटीरियर प्लेस है, वहां पे फिश नहीं है. ओके. उन्होंने एक साथ राउंड द क्लॉक फिश बाहर निकलेगा ऐसा प्लानिंग किया है. एक टैंक उसका 30,000 लीटर का है, और उन्होंने स्टॉकिंग डेंसिटी ऐसे रखा है कि एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद दूसरी साइकिल उसको बैकअप में रहे. ओके. ऑन द साइड उसके फार्म पे लोग लेने को आते हैं, और उसका तिलापिया 200 रुपए पर केजी के हिसाब से जाता है. उसका प्रोडक्शन कॉस्ट कम हुआ है. क्यों? उसके करीबन 25 टैंक है. ओके. तो जैसे ही टैंक बढ़ता है तुम्हारा प्रोडक्शन कॉस्ट ऑटोमेटिक कम होता है. उसको तिलापिया प्रोडक्शन का कॉस्ट पड़ रहा है 80 रुपीज पर केजी. आई एम अगेन रिपीटिंग, 80 रुपीज पर केजी उसका कॉस्ट पड़ रहा है, प्रोडक्शन कॉस्ट, और वो सेल आउट कर रहा है 200 में. तो क्या बोलेगा आदमी, बायोफ्लॉक इज वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस. बायोफ्लॉक इज वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस, बट दैट टू साइट स्पेसिफिक. वो सातारा में कर रहा है, रिमोट एरिया में कर रहा है, जहाँ पे फिश मिलता नहीं, तो वहाँ पे लोगों को लाइव फिश मिल रहा है, लोग ले रहे हैं, दे आर हैप्पी. बट इट ऐसे ही टाइप में अगर समझ लो, जहाँ पे मरीन फिश अवेलेबल है, रोज के 100 स्पीसीज मार्केट में आ रहे हैं, वहाँ पे तुम अगर बायोफ्लॉक का सेटअप लगाओगे तो कौन तुम्हारा फिश लेने को आएगा. सो यू विल नॉट गेट द मार्केट. सो बिफोर सेटअपिंग ऑल दिस थिंग्स you have to do this type of studies. Okay. Then and then you have to move forward. So every study I cannot do for you people, that you have to do for yourself. Okay. So this is ये basic thing है बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी. बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुमने शुरू किया और बाद में फिर मार्केट नहीं मिल रहा है, सर क्या करूँ, अब मेरे को प्रोडक्शन कॉस्ट 200 रुपये गिर गया, सर मेरा खर्चा भी निकला, बायोफ्लॉक मेरा फ्लॉप गया. और फिर वो आदमी बाहर जाके क्या बोलेगा, बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी इज फ्लॉप. इट इज वेरी क्लियर. अब मैंने पूरा क्लियरली बोल दिया. नाउ जस्ट वी विल स्टार्ट. सो दिस इज द मेन बेसिक थिंग्स
and you have to be very careful before starting any business.